तुल्य उठ सकता है। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। Therefore John says, इसलिए यूहन्ना कहता है, ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਨਾ ਕਹਿੰਦਾ we ਹੈ do not know what we shall be. हमें नहीं मालूम हम क्या कैसे होंगे, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ, But one thing we know, लेकिन एक बात तो निश्चित है, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, when he shall appear, we will be like him. जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। By allowing man to fall in the Garden of Eden, God opened a way for you and me to become like him. अदन बगीचा में मनुष्य के गिरने के लिए रास्ता तैयार करते हुए परमेश्वर ने मुझे और आपको यह सौभाग्य दिया कि हम अपनी स्व इच्छा से अपने सृष्टिकर्ता के तुल्य बन सके। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚੀਏ। Please try to understand the great wisdom of God. परमेश्वर के असीम ज्ञान को हम उसकी गहराई को जरा समझें। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। If the first man would not have fallen, we would never have got the opportunity to become like him. अगर पहला मनुष्य पाप नहीं करते, अगर वो नहीं गिरता तो हमें कभी भी अपने सृष्टिकर्ता के तुल्य होने का मौका नहीं मिलता। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। So according to the wisdom of the Almighty God, he allowed the first man to fall. इसलिए परमेश्वर ने अपने सर्व ज्ञान में पहले मनुष्य को गिरने का रास्ता तैयार किया। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। What was the expectation of God? परमेश्वर की इच्छा, उम्मीद क्या थी? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਮੀਦ ਕੀ ਸੀ? Man will accept the true path and work out his own salvation and become like me. मनुष्य अपनी स्व इच्छा से असली मार्ग को पहचानेगा और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते हुए मेरे तुल्य हो जाएगा। ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉद्धार ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Look at the love of God. परमेश्वर के प्यार को जरा देखें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ। He allowed man to fall. मनुष्य को पहले गिरने का मौका दिया, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। But before that, he already planned his person Jesus to come and die on the cross and prepare a way for man. मनुष्य के गिरने के पहले, जगत के बुनियाद के पहले ही क्रूस पर जान देने के लिए अपने पुत्र को तैयार रखा ताकि मनुष्य को उस हालत से उभारे। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। See, even before creating man, मनुष्य को सृष्टि करने के पहले से ही, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, before the earth was created, इस पृथ्वी की नेव डालने के पहले से ही, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, before the Adam was created, पहले मनुष्य को बनाने के पहले से ही, ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ he prepared his son to come and die on the cross and prepare a way for the people to become like him. अपने पुत्र को क्रूस पर आकर जान देने के लिए पहले से ही तैयार किया ताकि उसके द्वारा मनुष्य उसके तुल्य होने के लिए उसको रास्ता मिल जाए। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। Understand the wisdom of God. परमेश्वर के इस असीम ज्ञान की गहराई को समझें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। Before man was created, मनुष्य को सृष्टि करने से पहले, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, before sin entered into the world, इस संसार में पाप ने प्रवेश करने के पहले, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, before sin entered into the world, इस संसार में पाप ने प्रवेश करने के पहले, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ he prepared his son to die on the cross. अपने पुत्र को क्रूस की मौत सहने के लिए तैयार कर लिया। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੀ
मौत सहन वास्ते तैयार कर देता। Please understand, he did not prepare his son after the man has committed sin. यह ध्यान इस बात को अच्छी तरह समझे, मनुष्य के पाप करने के बाद जल्दीबाजी बनाए योजना नहीं है क्रूस पर का मौत। और इस गल नूं जरा ध्यान दे नाल सुनिए कि ए मनुख दे पाप करन तो बाद जल्दबाजी विच इस तरह क्रूस दा प्रोग्राम नहीं बनया। Before man was created, मनुष्य को सृष्टि करने के पहले, मनुख दी सृष्टि करन तो पहला, before sin entered, पाप ने पृथ्वी में प्रवेश करने के पहले, पाप नूं धरती ते प्रवेश करन तो पहला, first he prepared his son to die on the cross. सबसे पहले अपने पुत्र को क्रूस की मौत सहने के लिए तैयार किया। सब तो पहला अपने पुत्र नूं सलीब दी मौत सहन लई तैयार कीता। That's why it is written, the lamb that was slain before the foundation of the world. इसलिए वचन कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ मेमना। इसलिए वचन कहता जगत दी उत्पत्ति तो पहला तो वध कीता गया मेमना। Do you hear me? क्या आपने मेरी बात को सुना? की तुसी मेरी गल नूं सुनिया? Look at the eternal wisdom of God. परमेश्वर के अनंत काल के इस असीम ज्ञान को जरा देखें। परमेश्वर दे सदीपक काल दे बेहद ज्ञान नूं जरा वेखिए। How much God longs for you to become like him. आप और मैं उसके बराबर, उसके तुल्य होने के लिए प्रभु परमेश्वर कितना इच्छुक है। और मैं अते तुसी उसके बराबर या उसके तुल होने दे परमेश्वर कितना चाहता है, इच्छुक है। First he prepared his son to die on the cross. सबसे पहले अपने पुत्र को क्रूस की मौत के लिए तैयार किया। सब तो पहले अपने पुत्र नूं सलीबी मौत दे लई उसने तैयार कीता। Then he created the earth. उसके बाद इस पृथ्वी की नींव डाली। उस तो बाद उसने धरती दी नींव रखी। Then he created the first man. उसके बाद पहले मनुष्य को बनाया। उस तो बाद पहले मनुष्य आदम नूं बनाया। Then he allowed the tempter to come. उसके बाद बगीचे में परीक्षा करने वाले को आने की अनुमति दी। उस तो बाद बाग विच परखण वाले नूं आउण दी मंजूरी दित्ती। When I meditate on the love of this great God, I just keep crying and crying and crying. जब इस महान परमेश्वर के प्यार को जब मैं मनन करता हूँ, मेरे आंखों से आंसू बहता ही रहता। जद इस महान परमेश्वर दे इस महान प्यार दे उत्ते मैं गौर करदा हां ते मेरियां अखां विचों अंजू वगदे ही रहंदे आ। Then I understand that God is full of love. तब मुझे मालूम चलता है परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है। तद मैनूं पता लगदा है परमेश्वर प्यार दे नाल भरिया होया है। He prepared Jesus Christ to come and take away our sin upon him. उसने मसीह यीशु को तैयार किया ताकि वो आकर हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले। उसने मसीह यीशु नूं तैयार कीता कि ओ आके साडे पापां नूं अपने उत्ते चुक ले। The world never demanded God. God sent his son to die for us. संसार ने कभी ये प्रार्थना नहीं की, हे परमेश्वर अपने पुत्र को भेज ताकि वो हमारे पापों के लिए कीमत दे। संसार ने कदे भी ये प्रार्थना नहीं की थी, हे परमेश्वर अपने पुत्र नूं भेज ताकि वो साडे पापां दे लई कीमत देवे। Therefore it is written, for God so loved the world, he sent his only begotten son, so that whosoever believeth in him should be saved. इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए वचन में लिखा परमेश्वर ने जगत नूं अजिहा प्यार किया उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता जो कोई उस ते विश्वास करे और नाश ना होवे सगों सदीपक जीवन पावे। Now in the book of Isaiah chapter 1 we read like this. हम यशायाह पहले अध्याय में इस प्रकार पढ़ते हैं। ਅਸੀਂ यशायाह पहले अध्याय ਵਿੱਚ इस तरह पढ़ते ਹਾਂ। Isaiah chapter 1 verse 18 and 19. यशायाह पहला अध्याय 18 और 19वां वचन। यशायाह पहला अध्याय उसकी 18 ਤੇ 19 आयत। Come now and let us reason together. Say the Lord, though your sin be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If you be willing, obedient, and you shall eat the fruit good of the land. But if you, verse 20, 19 and 20, but if you refuse and rebel, you shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. 18 से 20 तक यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे और यदि तुम ना मानो
और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे, यहोवा का यही वचन है। आओ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਚ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜੀਠ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਉਹ ਉੱਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ। God speaks to the sinner. Sinner, look at the cross. परमेश्वर पापी से देखकर कहता है, उस क्रूस की ओर देख। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। Let your sin be red like crimson, it shall be made as wool. तेरा पाप चाहे लाल रंग का या अर्गवानी रंग का हो, ऊन की तरह उज्जवल श्वेत हो जाएगा। और तेरे पाप चाहे किरमच जय होन, चाहे बर्फ जय, चाहे मजीठ जय लाल होन, वो ऊन दी तरह बर्फ दी तरह चिट्टे हो जाएंगे। God is not telling the sinner, go and wash your sin and come to me. परमेश्वर पापी से नहीं कहता तू जाकर अपने पापों से शुद्ध होकर मेरे पास आ। परमेश्वर पापी नु ये नहीं कहता कि तू जाके पहला अपने पापा तो शुद्ध हो के आ। No rivers on this world can wash away the sin of the man. इस पृथ्वी के कोई भी नदी मनुष्य के पापों को धोकर शुद्ध नहीं कर सकते। इस धरती दी कोई भी नदी या दरिया मनुष्य दे पापां नु धो के शुद्ध नहीं कर सकते। The sin is not in your body, it is in your soul. पाप आपके चमड़े के ऊपर नहीं लगा है, वो आपके प्राण में है। और पाप ताड़ी चमड़ी दे उत्ते नहीं लगा होया, सगों के ताड़े प्राण दे अंदर है। If your sin is on the body, you can wash in some holy rivers. अगर पाप आपके चमड़े पर लगा है तो आप कोई भी नदी, पवित्र नदी में जाकर शुद्ध हो सकते थे। और जेकर पाप ताड़ी चमड़ी उत्ते लगा हुंदा ते तुसी किसी भी नदी या सरोवर विच जाके उस पाप तो शुद्ध हो सकते। Sinner, sin is not on your body, but it is your soul. हे पापी, पाप तेरे चमड़े में नहीं, वो तेरे प्राण में है। और हे पापी, पाप तेरे चमड़े उत्ते नहीं, सगों तेरे प्राण विच है। No acid can wash your sins. कोई भी एसिड आपके उस पाप के धब्बे को मिटा नहीं सकता। कोई भी एसिड जो ताड़े पाप दे डब्बे नु धब्बे नु धो नहीं सकती। No good work can wash away your sin. तेरे कोई भी पुण्य काम तेरे पाप के कलंक को मिटा नहीं सकते। तेरे कोई भी धर्म या दान पुण्य दे काम जेड़े तेरे पाप दे धब्बे नु मिटा नहीं सकते। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप दी मजदूरी मौत है। What is death? मौत या मृत्यु क्या है? मौत की है? Eternally separated from God and be burned in hellfire. अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलगदाई और नरक की आग में जलना है। और परमेश्वर तो सदीपक काल दे तौर ते आडो के नरक दी आग में सड़ना है। The death, physical death is a sleep. शारीरिक मौत एक नींद है। शारीरिक मौत एक नींद दी तरह है। The physical death is an exit. ये जो शारीरिक मौत ये पृथ्वी पर से निकास है। और शारीरिक मौत जड़ी है ये तो धरती तो एक छुटकारा या निकलना है। The physical death is not a resting place, it is a passage, it is an exit. शारीरिक मौत इस पृथ्वी से निकलने का रास्ता है, निकास है। शारीरिक मौत जड़ी है वो इस धरती तो ये दुनिया विचों निकलने का एक रास्ता है। According to the word of God, we can call it as a sleep. और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम शारीरिक मौत को निद्रा या नींद कहते हैं। और परमेश्वर के वचन के अनुसार शारीरिक मौत नु असि नींद कहते हैं। But the real death is to be separated from God and spent your eternity in burning lake of fire. असली मौत परमेश्वर से अनंत काल की जुदाई और अनंत काल के लिए नरक की आग में जलना। असली मौत परमेश्वर दे नालों सदीपक काल तक जुदा होके सदीपक काल तक नरक दी आग में सड़ना। The sin of the present world will give you little pleasure. इस संसार का पाप आपको कुछ समय के लिए मजा देगा। इस संसार दा पाप तानु थोड़ी देर वास्ते मजा देवेगा। You may commit sin and try to enjoy. आप पाप कर कर शायद मजा ले सकेंगे। तुसी पाप करके हो सकता मजा ले सकोगे। It is just like a fish being baited by an angling fish baiting. ये मछली को जैसे हम कुंडी डालकर पकड़ते हैं, जिस तरह कांटा डालकर पकड़ते हैं, जिस तरह अस्सी मच्छी नु कुंडी दे नाल गडोया ला के फड़दे हां। When a man go for a fishing,
he carries a hook with him. जब एक आदमी मच्छी पकड़ने जाता है तो अपने साथ एक कांटा लेकर जाता है। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ Along with that, he carries some worm or some eatable for the fish. और उसके साथ उसमें फंसाने के लिए कोई कीड़ा या कुछ खाना लेकर जाता है। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਡੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ Along with the hook of sin, there is so many pleasures. पाप के इस कांटे में फंसाने के लिए बहुत कुछ खाने यानी पाप का आनंद के चीज लगा रखे हैं। ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਇਸ ਕੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ When the fish comes and touches that eatable worm or eatable things, it finds very good and tasty. और जब मछली पहले आकर वो खाने को चखता है तो लगता है बहुत अच्छा है। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਗਡੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦੀ ਹੈ The fish then walk around, swim around, come and touch again and touch again. और फिर मच्छी उसी कांटे के आगे पीछे घूमती है, चखती है। ਔਰ ਮੱਛੀ ਫੇਰ ਉਸ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਡੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ The baiter, the fisherman waits. और जो मछुआ है इंतजार करता है। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ So the fish, thinking that it is good for me, I can enjoy, finally open its mouth and swallow it. मच्छी थोड़ी देर उसका स्वाद वगैरह चखने के बाद आखिरी में तय करती है खाने के लिए अच्छा है और जाकर अपने मुंह में वो खाने को ले लेती है। ਔਰ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਛੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ Then when it swallows it, it gets stuck. और जब वो खाने को मुंह में ले लेती है तब कांटा फंस जाता ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ That's the end of the fish. और मच्छी की कहानी खत्म। ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ In the same way, sin you are enjoying for a season. इसी प्रकार आप पाप को कुछ दिनों तक मजा चख रहे हो। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ But a day will come, you cannot escape from it. लेकिन एक दिन आएगा आप उससे बच नहीं सकते। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ Therefore God says, "O sinner, look at the cross." इसलिए परमेश्वर कहता है, हे पापी क्रूस की ओर देख। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ When you look at the cross and confess your sin, what happens? जब आप क्रूस की ओर आंखें उठाकर अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो क्या होता है? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਮਨ ਫਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ You accept, "Oh Jesus, you are punished for my sin." तब आप स्वीकार करते हैं, यीशु तुम मेरे पापों के लिए तेरे ऊपर दंड पड़ी। ਔਰ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਈ Then you cry, "Oh Lord, because of my sin, your head is planted with thorns." तब आप रो पड़ते हैं, हे प्रभु मेरे पापों के कारण आपके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। ਤਦ ਰੋ ਕਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ Then looking at the face of Jesus, you say, "Because of my sin, your face was smitten. People spit upon your face." तब पापों को याद करते आप यीशु को देख के बोलेंगे, आप मेरे पापों के कारण आपके मुंह पर थूक पड़ी, आपके मुंह पर थप्पड़ पड़े। ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ Oh Lord, because of my sin, your back was plowed with Roman whips. हे प्रभु मेरे पापों के कारण आप पे पीठ पर रोमी कोड़े पड़े। ਔਰ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਮੀ ਕੋੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ Oh Lord, because of my sin, you had to carry that heavy cross. हे प्रभु मेरे पाप के कारण आपको भारी क्रूस उठाना पड़ा। हे प्रभु मेरे पाप ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ Oh Lord, because of my sin, your hands were nailed and feet were nailed. हे प्रभु मेरे पापों के कारण आपके हाथ और पैरों में कीले ठोके गए। हे प्रभु ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ Oh Lord, because of my sin, you had to hang on that cross. हे प्रभु मेरे पापों के कारण तेरे को उस क्रूस पर टंगना पड़ा। और हे प्रभु मेरे पापों ਦੇ ਕਾਰਨ
ਤੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। Lord, because of my sin, all have forsaken you. हे प्रभु मेरे पापों के कारण तेरे को सबने त्याग दिया। ਔਰ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। Oh Lord, because of my sin, when you are thirsty, you do not get a cup of water. हे प्रभु मेरे पापों के कारण जब आपको प्यास लगी, आपको पीने के लिए किसी ने कटोरा पानी भी नहीं दिया। हे प्रभु मेरे पापां ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। Oh Lord, because of my sin, you are stripped naked. हे प्रभु मेरे पापों के कारण आपको नंगा लटकाया गया। हे प्रभु मेरे पापां ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। Lord, I don't want to commit sin anymore. प्रभु मैं और कभी पाप का मजा चखना नहीं चाहता। प्रभु मैं ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। Lord, I don't want to commit sin anymore. प्रभु मैं और पाप नहीं करना चाहता। प्रभु ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। Lord, I am a sinner. हे प्रभु मैं पापी हूँ। हे प्रभु मैं पापी हूँ। No river can wash my sin. हे प्रभु कोई नदी मुझे शुद्ध नहीं कर सकता। हे प्रभु कोई भी नदी या दरिया ਮੈਨੂੰ शुद्ध नहीं कर सकता। Lord, no good deeds can make me clean. प्रभु मेरे पुण्य काम मुझे शुद्ध नहीं कर सकते। प्रभु मेरे धर्म या दान पुण्य ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ शुद्ध नहीं कर सकते। You died on my behalf. तू मेरे स्थान पर मरा। तू मेरी जगह ते मरिया। You were punished on my behalf. तेरे ऊपर मेरे कारण दंड की आज्ञा हुई। और मेरे कारण तेरे उत्ते सजा दी हुक्म आया। Lord, I do not want to commit sin anymore. प्रभु मैं आगे को पाप करना नहीं चाहता। प्रभु मैं आगे तो पाप करना नहीं चाहता। I repent of my sin. मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ। मैं अपने पापों तो तौबा करदा या मन फिराउना। I open my heart to you. मैं अपने हृदय को आपके लिए खोलता हूँ। मैं अपने दिल ਨੂੰ तेरे लिए खोलदा हां। And you pray, Lord, wash me with your blood. और फिर प्रार्थना करते हे प्रभु अपने पवित्र खून से मुझे धो ले। फिर प्रार्थना करदे हां हे प्रभु अपने पवित्र खून दे नाल मैनू धो दे। Then what happens? तब होता क्या है? फिर होता की Holy, है? then the Holy Spirit brings the seed, the word of God in your soul. तब पवित्र आत्मा बीज जो परमेश्वर का वचन है वो आपके प्राण में लेकर आता है। तद पवित्र आत्मा परमेश्वर दे वचन दे बीच ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ प्राण दे अंदर लेके आਉਂਦਾ है। Then what happens? तब होता क्या है? तद ਹੁੰਦਾ ਕੀ है? You are born in the family of God. आप वचन आने के कारण आपका जन्म परमेश्वर के परिवार में हुआ। और वचन आਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। You are born in the family of God. आप परमेश्वर के घराने में जन्म ले लिए। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। You are not just come like a beggar there. आप परमेश्वर के घराने में एक भिखारी की तरह नहीं आए। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਏ। You are not come by the mercy of God. आप परमेश्वर की दया के कारण उसके घराने में नहीं आए। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। You are born in his family. आपका जन्म परमेश्वर के घराने में हुआ है। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। Just like Finney is born in my family. जिस प्रकार फिन्नी मेरे घराने में जन्म लिया, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, In the same way, when the word, the seed has come in you, you are born in the family of God. उसी प्रकार जब वचन का बीज मेरे और आपके अंदर आया, हमारा जन्म परमेश्वर के घराने में हुआ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। Your religion is not changed. आपका धर्म नहीं बदला। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। You are not converted from one religion to another religion. एक धर्म से दूसरे धर्म में आपका धर्मांतरण नहीं हुआ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। But you got a privilege to be born in the family of Almighty God. लेकिन आपको सौभाग्य मिला परमेश्वर के घराने में जन्म लेने का। ਸਗੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ। You got the privilege to be born in the family of Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घराने में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। Then the next step is what? अगला कदम क्या है? ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ? Romans chapter 6 verse 3 to 6. रोमी 6:3 से 6। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6 ਦੀ 3 ਤੋਂ 6। Romans 6 3 to 6. रोमी 6 उसके 3 से 6। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6 ਦੀ 3 ਤੋਂ 6। Knowing not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death,
Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। अथवा तुसी इस गल तो अनजान हो भाई साडे विच जिन्हां ने मसीह यीशु दा बपतिस्मा लिया ओदी मौत दा बपतिस्मा लिया, सो असी मौत दा बपतिस्मा लैन करके ओदे नाल दबे गए, तां जो जिवें पिता दी वडियाई दे वसीले नाल मसीह मुर्दियां विच जवा लिया गया, तिवें असी भी नवें जीवन दे राह चलीए। जदों असी ओदी मौत दी समानता विच ओदे नाल जोड़े गए तां ओदे जी उठण दी समानता विच भी होवांगे। क्यों जो असी ये जानते हैं जो साडी पुरानी मनुखताई ओदे नाल सलीब उत्ते चढ़ाई गई, भाई पाप दा शरीर नष्ट हो जावे तां अगाह नूं असी पाप दी गुलामी ना करिए। Many people think that water baptism is the process of converting a person from other religion to Christian religion. कई लोगों का विचार है कि पानी के बपतिस्मा के द्वारा ये एक ऐसा रीति रिवाज है जिससे लोगों को दूसरे धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरण किया जाता। और कई लोगों का विचार है कि पानी दे बपतिस्मे दे द्वारा जो दूसरिਆਂ ਨੂੰ ईसाई धर्म दे विच परिवर्तन किया जाता है। When I was in the police custody and in the prison, highest police officers of Jammu, SSP and then CID officials, CBI officials questioned me, interrogated me for several hours. जब मैं पिछले दिनों में जेल में था और पुलिस कस्टडी में था, एसएसपी और बाकी बड़े अधिकारियों ने मुझसे सवाल पूछे, कई पूछताछ किए। और जब मैं पिछले दिनों जेल में सी, पुलिस के वड्डे वड्डे जिहड़े अधिकारी पुलिस की गिरफ्तारी में सी, उन्होंने मेरे कोलों कई सवाल पूछे। And one of that, the main important question was, did you baptize people? तब उन्होंने उसमें से मुख्य सवाल था, क्या तुम लोगों को बपतिस्मा दिए हो? और ताद ओदे विच उन्होंने मुख्य सवाल पूछा कि तुसी लोकां नूं बपतिस्मा दिता है? I said, yes, I baptize everyone who commit himself for a new life. और मैंने कहा हाँ, जो कोई नया जीवन जीने का इच्छा करता है उसको मैं बपतिस्मा देता हूँ। मैं उन्होंने कहा हाँ, जो कोई नवे जीवन दी नवा जीवन जिउना चाहता है, इच्छा करता है, उसनूं मैं बपतिस्मा देंदा हाँ। If anyone expresses desire, I want to close the chapter with Satan, then I give him baptism. अगर कोई अपनी इच्छा दिखाता है मुझे शैतान के साथ हिसाब किताब खत्म करना है तो मैं उसको बपतिस्मा देता हूँ। और जो कि अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मैं शैतान दे नाल जो अपना हिसाब किताब है उसनूं खत्म करना है, उसनूं मैं बपतिस्मा देना है। If anyone comes forward and says, I do not want to live in sin, I want to live for God, then I baptize him. अगर कोई आगे आकर कहता है मेरे को आगे पाप में जीवन नहीं बिताना, मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूँ, तो मैं निश्चित उसको बपतिस्मा देता हूँ। और जो कि अगे आके कहता कि हुण मैं पाप विच जीवन बिल्कुल नहीं गुजारना, मैं परमेश्वर दे पीछे चलना चाहना, मैं पक्का उसनूं बपतिस्मा देना है। And I said baptism is not to convert anyone from any other religion to Christian religion. और मैंने कहा बपतिस्मा किसी को एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने का रिवाज नहीं। मैं उन्होंने कहा कि बपतिस्मा किसी नूं एक धर्म विचों दूसरे धर्म विच लियाउण दे लई बदलण दा रिवाज नहीं है। Even Christian priests come and they say we want to submit for a new life, I'll baptize them. अगर ईसाई पादरी भी आए और वो बोले कि हमें नए जीवन के लिए समर्पण करना है तो हम उनको भी बपतिस्मा देते हैं। जेकर ईसाई पादरी भी आए वो कहे मैं नवे जीवन दे राह चलना है ते उसनूं भी बपतिस्मा देंगे। If any Christians come and say I want to lead a new life and I want to close my chapter with Satan, I baptize them also. अगर कोई ईसाई आकर कहता है मुझे नया जीवन बिताना है, शैतान के साथ हिसाब खत्म करना है, तो हम उसको बपतिस्मा देते हैं। जेकर कोई ईसाई भरा भी आके कहता है कि मैं नवा जीवन बताउना है, शैतान दे नाल जेड़ा हिसाब किताब उसनूं खत्म करना, उन्नूं भी पानी दा बपतिस्मा देंगे। Then the highest police official said, this is a new thing we are hearing. तब पुलिस अधिकारी, बड़े ऊंचे अधिकारी कहते हैं हम तो ये पहली बार सुन रहे, नई बात है। और तद पुलिस दे जेड़े उच्चे उच्चे अधिकारी सी वो कहंदे ये गल तां असीं पहली
ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। Friends, we are not giving baptism to convert people. प्यारे मित्रों, हम लोगों को धर्मांतरण करने बपतिस्मा नहीं देते। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। We give baptism to such a person who says, I want to bury my old man. I want to be totally new. For such people, we give baptism. हम बपतिस्मा उन्हीं को देते हैं जो कहते हैं कि हमें पुराने मनुष्य को दफन करना है। ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੈ। Whether it's a Christian, whether it's a Hindu or a Muslim or anyone, he has to be baptized. अगर हिंदू मुसलमान ईसाई कोई भी हो, उसको बपतिस्मा लेना है। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਭਰਾ कोई भी हो जिसने बपतिस्मा लेना है। I said, I took baptism. मैंने कहा मैंने बपतिस्मा लिया। और मैं कहा मैं खुद बपतिस्मा लिया। My wife is also baptized. मेरी पत्नी ने बपतिस्मा लिया। मेरी पत्नी ने बपतिस्मा लिया। Both the children are baptized. मेरे बेटी के बच्चों ने बपतिस्मा लिया। मेरी बेटी के बच्चों ने बपतिस्मा लिया। My son also baptized. मेरे बेटे ने बपतिस्मा लिया। मेरे बेटे ने बपतिस्मा लिया। There was no answer for this police official. ये पुलिस अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं। तद पुलिस अधिकारियों दे कोल कोई जवाब नहीं। So when you are called to questioning about baptism, give this answer. यदि आपको कोई भी बुलाकर बपतिस्मा के विषय सवाल पूछे, यही ठोस जवाब उनको देना। और जेकर कोई भी तानु बुला के बपतिस्मे दे बारे सवाल पूछे, उसनु यही सख्त जवाब देना है। We baptize not to change a religion. हम किसी को धर्मांतरण करने बपतिस्मा नहीं देते। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। Through baptism we close the chapter account with Satan. बपतिस्मा के द्वारा हम शैतान के साथ सारा हिसाब किताब खत्म करते हैं। और बपतिस्मे ਦੇ ਦੁਆਰਾ शैतान ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Whatever the right Satan has on us, that is finished through baptism. बपतिस्मा के द्वारा शैतान का जो भी हमारे ऊपर हक है वो सब समाप्त करते हैं। और बपतिस्मे ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Through baptism we put on Christ. बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह यीशु को पहनते हैं। बपतिस्मे ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Who should take baptism? बपतिस्मा किसने लेना है? बपतिस्मा किहदे ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ? Who has confessed his sin and accepted Jesus Christ as his savior? जिसने अपने पापों को अंगीकार किया और मसीह यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार किया। जिसने अपने पापों तो मन फराया, मसीह यीशु ਨੂੰ अपना प्रभु करके कबूल किया। Who has opened his heart to receive the seed of the word of God? जिसने अपने हृदय को परमेश्वर के वचन का बीज को स्वीकार करने के लिए खोला है। जिसने अपने दिल ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ बीज ਨੂੰ कबूल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। When he should take baptism? बपतिस्मा कब लेना है? बपतिस्मा कदों लेना है? On the day of Pentecost, when they heard preaching, the same day 3,000 were baptized. पेंतिकोस के दिन जब 3,000 ने वचन सुना, उसी दिन 3,000 ने कलीसिया में जुड़ गए बपतिस्मा के द्वारा। और पेंतिकोस्त के दिन जब 3,000 जणियां ने वचन सुनिया तो उस दिन ही वो बपतिस्मा लेके कलीसिया में जुड़ गए। We read about the eunuch on his way, he took baptism. हम उस खोजे के बारे में पढ़ते हैं जो सफर में ही उसने बपतिस्मा ले लिया। ਅਸੀਂ उस खोजे के बारे पढ़ते हैं जिसने सफर में ही बपतिस्मा ले लिया। He did not wait that I'll go home, but on his way he took baptism. वो ये नहीं सोचा मैं घर में जाकर सोच कर फिर लूंगा, रास्ते में ही बपतिस्मा ले लिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं घरे जाके सोचांगा विचारांगा फिर बपतिस्मा लाऊंगा, रास्ते में ही बपतिस्मा ले लिया। We read about the jailers. In the night itself they took baptism. हम उस जेल अधिकारी के बारे में पढ़ते हैं जिसने रात में ही बपतिस्मा लिया। ਅਸੀਂ जेल के अधिकारी के बारे पढ़ते हैं जिसने रात ही बपतिस्मा ले लिया। Baptism is not a thing that you can postpone for some days. बपतिस्मा ऐसा चीज नहीं है जो आप कल के लिए हटा कर रख सकते हो। और बपतिस्मा ਇਹੋ जी चीज नहीं जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ तक हटा के रख सकते हैं। You know, if somebody is dead, you immediately arrange for sanskar. अगर कोई मर जाता है तो अगला काम एकदम उसकी दफनाई या उसको जलाना है। ਜਦੋਂ कोई मर जाता है तो अगला काम एकदम उसਨੂੰ दफन करना या ਉਹਦਾ संस्कार करना है। You do not wait for 10 days or 15 days. आप ये नहीं बोलते जब पैसे इकट्ठे होंगे 10-15 दिन इंतजार कर लेंगे। और ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ 10-15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। But if he is unconscious, you will not bury him. लेकिन अगर वो बेहोश है तो फिर आप दफन करने की गलती नहीं करोगे। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। Oh, there are so many unconscious people. आजकल बहुत तेरे बेहोश हैं, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, Not dead, मरे नहीं, ਮਰੇ ਨਹੀਂ,
Don't take baptism. बपतिस्मा लेने की गलती ना करें। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। If you are dead, then take baptism. नस चलना बंद हो गया, मर गए, तो बपतिस्मा लें। ਜੇਕਰ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ। If you continue in the unconscious stage, अगर बेहोशी की हालत में चलते रहोगे तो ਜੇਕਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ you will get awake in the lake of fire. आपको आग की झील में होश आएगा। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ। If you say, okay, I enjoy unconscious stage, it is good. आप बोलोगे इस पृथ्वी पर तो बेहोशी में मैं बड़े मजे से रहा, मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। But you will come to realize, or you come awake in the lake of fire. लेकिन आपकी होश खुलेगी जब आग की झील में पड़े हो। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਬਲੋਗੇ। You may be an addict of tobacco. आप शायद तंबाकू के गुलाम होंगे। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੇ ਜਾਂ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੋਗੇ। Even the government says smoking is injurious to your health. सरकार खुद कहती है बीड़ी पीना, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀੜੀ ਪੀਣੀ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। On one side you want Jesus, एक साइड में आपको यीशु मसीह चाहिए, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, and the other side you want your friend Satan, that hook, that fish hook, to take you to hellfire. और दूसरे तरफ में आपको शैतान का वो कुंडा या वो कांटा चाहिए जिसके द्वारा आप नरक में पहुंच जाएं। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। Brother, sister, how long you'll continue in that unconscious stage? प्यारे भाई, प्यारे बहन, कितनी देर तक आप इस बेहोशी की हालत में रहेंगे? ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ? God be willing, tomorrow afternoon there is water baptism. प्रभु की इच्छा हुई, हामत में देरी तो कल दोपहर को बपतिस्मा का सेवा है। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। So tomorrow afternoon is baptism. कल दोपहर को बपतिस्मा। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। Who will get baptism? कौन बपतिस्मा लेगा? ਕੌਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏਗਾ? Who declare himself, I am dead. जो ऐलान करता है मैं मर गया, ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, I don't want tobacco anymore. मुझे गुटखा या तंबाकू आगे नहीं चाहिए, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਟਕਾ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, I don't want cigarette anymore. मैं सिगरेट की सेवन नहीं करूंगा, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਬੀੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। I know this cigarette will take me to hellfire. मुझे मालूम है सिगरेट मुझे नरक की आग में ले जाएगा, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। I do not want to live in sin. मेरे को पाप में जीवन नहीं बिताना, ਮੈਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, I do not want to enjoy sin. मुझे पाप में मजा नहीं लेना है। ਮੈਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। And when you take water baptism, और जब आप बपतिस्मा लेंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ, you become the household of God. आप परमेश्वर के घराने के अंग बन जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। Hallelujah. हालेलुया। You ਹਾਲੇਲੂਇਆ। have got the privilege to be born in the house of God. आपको परमेश्वर के घराने में जन्म लेने का सौभाग्य मिला, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। And after baptism, you became the household of God. बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर के घराने के अंग बन गए। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ। How it has become possible? ये कैसे संभव हुआ है? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? You have closed the right of Satan. आपने शैतान का आपके ऊपर का अधिकार को समाप्त किया, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Till you close the right of Satan, जब तक आप शैतान के साथ का हिसाब किताब खत्म नहीं करते, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, like a dog, he will be always following you. एक कुत्ते की तरह वो आपके पीछे चलता रहेगा। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। But if you bury your old man through water baptism, लेकिन पानी के बपतिस्मा के द्वारा पुराने मनुष्यत्व को अगर आप दफना देते हो, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, then Satan will realize
तब शैतान को मालूम चलेगा फिर शैतान ਨੂੰ पता लग जाएगा he has publicly denounced me. उसने खुलेआम मुझे त्याग दिया है। उसने खुलेआम ਮੈਨੂੰ त्याग ਦਿੱਤਾ है। Through baptism you denounce to before Satan publicly. I hereby denounce you. बपतिस्मा के दौरे खुलेआम आप शैतान से कहते हैं मैं तेरे साथ सारा हिसाब किताब खत्म कर रहा हूं। बपतिस्मे ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। That high privilege God has given for you and for me. परमेश्वर ने ऊंचा पदवी मुझे और आपको दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। Galatians 3:27-28 says, गलाती 3:27-28 कहता है ਗਲਾਤੀ 3 ਦੀ 27 ਤੇ 28 ਐਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ those who have taken baptism have put on Christ. जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। We see Jesus Christ also going to be baptized in River Jordan. हम प्रभु यीशु मसीह को भी यरदन नदी में बपतिस्मा लेते हुए देखते हैं। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। There was no need for Jesus to take baptism. यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। But Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd walked before the sheep. यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। और यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा अयाली हां, अच्छा अयाली अपनी भेड़ां दे अगे अगे तुरदा है। As a good shepherd, he walked before us. वो अच्छे चरवाहे की तरह हमारे आगे आगे चला है। और वो अच्छे अयाली दी तरह साडे अगे अगे चलिया है। He submitted himself to be baptized in water in the River Jordan. यरदन नदी में अपने आप को बपतिस्मा के लिए सौंप दिया। और यरदन दरिया विच उसने बपतिस्मा लैण लई अपने आप ਨੂੰ दे दिता। Then the heaven says, this is my son in whom I am well pleased. सब स्वर खुल के आवाज सुनाई देती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। ता स्वर्ग तो आवाज सुन रही है, ए मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं बहुत ही खुश हां। So if Jesus has taken baptism, if you are following Jesus, you will have to be baptized. So यीशु ने बपतिस्मा लिया, तो यदि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो आपको भी बपतिस्मा लेना ही है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जेकर तुसी भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो ते तानु भी बपतिस्मा लेना है। Then after baptism, what happens to us? बपतिस्मा के बाद हमारे साथ क्या होता है? और बपतिस्मे दे बाद साडे नाल की हुंदा है? Colossians 3:10. कोलोसी 3:10। कुलसियां दी पत्री 3 दी 10 है। Colossians chapter 3 verse 10. कोलोसी 3 अध्याय 10वां वचन। कुलसियां दी पत्री 3 दी 10 है। And I put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਜੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। After taking baptism, you have got an inner man in you. बपतिस्मा के बाद आपके अंदर एक नया मनुष्यत्व आया है। और बपतिस्मे तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਈ ਹੈ। When you started believing in Jesus, the work started. जब आपने यीशु को विश्वास करना शुरू किया, कार्य आरंभ हुआ। और जब ਤੁਸੀਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। Then when you taken baptism, you are closed the chapter with Satan, entered into the family, a new man is born in you. जब आपने बपतिस्मा लेकर शैतान के साथ हिसाब खत्म कर कर परमेश्वर के घराने में प्रवेश किया तो एक नया मनुष्यत्व आपके अंदर आरंभ हुआ। जब ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਾਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। Look what God has done for you. देखिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया। और देखिए परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। God has created a new man in you. परमेश्वर ने आपके अंदर एक नया मनुष्यत्व को उत्पन्न किया। परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। That new man belongs to New Jerusalem. ये नया मनुष्यत्व नए यरूशलेम का नागरिक है। ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। Hear me. आपने मुझे सुना? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ? God has given you a citizenship of New Jerusalem by planting a new man in you. परमेश्वर ने अनंत काल के नए यरूशलेम की नागरिकता आपको दी, आपके अंदर एक नया मनुष्यत्व को पैदा करते हुए। परमेश्वर ने सदीप काल दे नवे यरूशलेम दी वसनीकी या नागरिकता ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। You are a born citizen of heaven. आप स्वर्ग के जन्म के द्वारा नागरिक बने हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ। Therefore, baptism is important. इसलिए बपतिस्मा अति आवश्यक है। ਇਸ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। You have cancelled the citizenship of Satan's world and you got a new citizenship in New Jerusalem. आपने शैतान के राज्य की नागरिकता समाप्त करने के द्वारा आपने परमेश्वर के नए यरूशलेम के नागरिकता आपको मिल गया है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। I am a citizen of heaven. मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। What Jesus gave me, प्रभु यीशु ने मुझे क्या दिया? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? He has forgiven my sin and healed my sickness. He blessed me. उसने मेरे पापों को माफ किया, मुझे चंगाई दिया, मुझे आशीष दी। ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। He comforts me. वो मुझे तसल्ली देता। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। But these are all minor things. लेकिन ये सब छोटी मोटी बातें हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। He has given me the citizenship of heaven. उसने मुझे स्वर्ग का अनंत काल का नागरिकता दिया है। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Hallelujah. हालेलुया। Though we are sitting on this earth, we are born citizen of heaven. बेशक हम इस पृथ्वी में रहते हैं, हम जन्म द्वारा स्वर्ग के नागरिक हैं। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। That's why angels are taking care of us, walking around us. इस कारण स्वर्ग के स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ पहरा देते हैं। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਸੁਰਗਦੂਤ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Then God gave us the Holy Spirit. उसके बाद परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा को दिया। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। What is this Holy Spirit? ये पवित्र आत्मा क्या है? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? Jesus said, till you are clothed with the Holy Spirit, wait. प्रभु यीशु ने कहा जब तक आप पवित्र आत्मा से ढांपे नहीं जाते इंतजार करें। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या जिन्नी देर तक तुम पवित्र आत्मा दे नाल ढकदे नहीं भरदे नहीं उन्नी देर तक उਡੀਕ करें। You know, when we send, or America or Russia send their spaceman to moon, they send a space suit. जब अमेरिका या रूस वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजता है तो उनको विशेष कपड़े पहनाकर भेजता है। स्पेस सूट पहनाकर भेजता है। और जब अमेरिका या रूस जिहड़ा है वो अपने विज्ञानियों ਨੂੰ अंतरिक्ष ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। अंतरिक्ष ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। In that space suit, all what they need in the earth is provided. उनके उस स्पेस सूट के अंदर उनको जो जीने के लिए जो भी वातावरण चाहिए वो कपड़े के अंदर, स्पेस सूट के अंदर इंतजाम किया। और जो कुछ उन्होंने जिउण वास्ते वातावरण या इंतजाम चाहिदा है वो स्पेस सूट दे विच हुंदा है। Yes, come forward. Why we have come to stand up, I want to make it more clear to you. हम क्यों आगे खड़े हैं ताकि आपको और भी साफ स्पष्ट तौर पर समझाएं। और ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ। Many of us are not aware what all God has done for us to make us fit to live in New Jerusalem. हम में से बहुतों को इस बात की एहसास नहीं हुआ कि परमेश्वर ने हमें नए यरूशलेम के लिए योग्य बनाने के लिए क्या क्या किया। और ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। I said when America sent the spaceman Armstrong first, he was given a space suit,
covering all his head and body. जब अमेरिका ने पहले बार अंतरिक्ष में एक वैज्ञानिक को आर्मस्ट्रांग को भेजा, उसको एक स्पेस सूट पहनाकर भेजा जो उसको पूरा ढांपा हुआ था। और जब अमेरिका ने पहली बार अंतरिक्ष ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੇਸ ਸੂਟ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। Why that spacesuit was necessary? उसको ये स्पेस सूट क्यों दिया गया? ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? The atmosphere of the moon was not suitable for him. क्योंकि चंद्रमा का जो वातावरण इस वैज्ञानिक को जीने के लिए अनुकूल नहीं था। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। Therefore, Armstrong had to live within that spacesuit and carry all the work. इसलिए आर्मस्ट्रॉन्ग को जब वो चंद्रमा में था, इसी स्पेस सूट को पहने हुए उसी के अंदर रहते हुए सारा काम करना था। तो इसलिए उस विज्ञानी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਪੇਸ ਸੂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। He cannot remove his head cover. वो अपने सिर से अपने कपड़े को हटा नहीं सकता। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। If he removes the head cover, the atmosphere of the moon will affect him and he will die. और अगर वो सिर से अपनी टोपी और कपड़े को हटा दे तो चंद्रमा का वातावरण अंदर आ जाएगा और वो मर जाएगा। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਢਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। Therefore, he has to live his head, his feet, his hand, everything within that spacesuit. इस कारण अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसको अपना पूरा शरीर, हाथ, पैर, सिर उस स्पेस सूट के अंदर रखना। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੇਸ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। He had to do a lot of work there. उसको चंद्रमा में बहुत काम करना है। ਉਸ ਨੇ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ He ਹੈ। had to dig some place. और उसको कई जगह में खोदना है। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ। He had to bring some rock. कुछ पत्थरों को इकट्ठा करके लाना कुछ है। पत्थरों को इकट्ठे करके लेके आना है। They did all these things living within that spacesuit. उन्होंने ये सारा काम ये स्पेस सूट के अंदर रहते हुए किया। और उसने सारा काम इस स्पेस सूट दे विच रह के कीता। When 120 people were waiting, जब 120 लोग ऊपरी कोठरी में इंतजार कर रहे थे, जब 120 लोग ऊपरले चुबारे विच इंतजार कर रहे थे, 120 spacesuit of heaven came upon them. 120 स्पेस सूट स्वर्ग से इनके ऊपर आ गया। 120 स्पेस सूट जेड़े स्वर्ग तो इन्हां दे उत्ते आ गए। Immediately they became heavenly people. और तुरंत वो स्वर्गीय व्यक्ति बन गए। वो एकदम स्वर्गीय व्यक्ति बन गए। And what is that spacesuit? और वो स्पेस सूट क्या है? वो स्पेस सूट की है Holy Spirit. पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। So they were living in the spacesuit of Holy Spirit and began to work. और वो पवित्र आत्मा के स्पेस सूट में रहते हुए ये पृथ्वी में अपना कार्य आरंभ किए। और उसने उन्होंने पवित्र आत्मा स्पेस सूट विच रह के धरती दे उत्ते अपना काम कीता। Wearing that spacesuit and walking with that spacesuit, they declared to the world, we are not of this world. इस स्पेस सूट को पहनते हुए चलते फिरते खुलेआम सारे संसार को ऐलान किया कि हम इस संसार के नहीं। और उन्होंने स्पेस सूट जड़ा पहनदे चलदे फिरदे खुलेआम इस दुनिया नु ऐलान किया, असि इस दुनिया दे नहीं हां। Devil was frightened. शैतान उनसे डर गया। शैतान उन्हें तो डर गया। Satan's throne was shaken. शैतान का सिंहासन हिल गया। शैतान दा सिंहासन हिल गया। 120 heavenly people walking. 120 स्वर्गीय मनुष्य चल फिर रहे हैं। और 120 स्वर्गीय मनुष्य चल फिर रहे हैं। Through the streets of Jerusalem, 120 heavenly people walking. यरूशलेम की गलियों में 120 स्वर्ग के नागरिक सामर्थ के साथ चल रहे हैं। और यरूशलेम दी गलियों में चौकों में स्वर्ग के 120 नागरिक चल फिर रहे The हैं। whole Jerusalem was shaken. पूरा यरूशलेम उलट पुलट हो गया। और पूरा यरूशलेम पूरे दा पूरा हिल गया। They were full of power. वो सामर्थ से भरपूर थे। अब उस समर्था नाल भरे हुए सी। All the power they required that was in that spacesuit. जो कोई सामर्थ उनको इस पृथ्वी के लिए चाहिए था, उस स्पेस सूट में
वो पूरा सामर्थ बहुतायत के साथ था। जिन्नी भी समर्था ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਫੇਦ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। Armstrong, after landing in the moon, did not call America, send me some help. आर्मस्ट्रांग जब चांद में उतरा उसने अमेरिका को यह संदेश नहीं भेजा मुझे कुछ मदद भेजो। और जब अमेरिका का पहला वैज्ञानी चंद्रमा पे गया उन्होंने उतो अमेरिका को संदेश नहीं भेजा मेरी कुछ मदद वास्ते कर लो। Scientists have already provided what all they needed in that spacesuit. आर्मस्ट्रांग इस पृथ्वी से चांद में जाने के पहले अमेरिका के वैज्ञानिकों ने उसको ऐसे कपड़ा पहनाकर भेजा जिसके अंदर उसको चांद में रहने के लिए सब कुछ इंतजाम किया था। और अमेरिका का वैज्ञानिक अमेरिका ने चंद्रमा ते जान तो पहला जो कुछ भी उन्हें चाहिए जो भी प्रबंध की लोड़ सी सारा दे के उन्हें कलिया। Then when this 120 spacesuit came, all power, everything they needed was in that spacesuit. जब ये 120 के ऊपर स्वर्ग से ये स्पेस सूट उतरा इनके लिए पृथ्वी पर के लिए सारा सामर्थ बहुतायत के साथ स्वर्ग से उतरा था। और जब 120 लोगों देते 120 स्पेस सूट कलेगा उन्होंने धरती ते जितना भी प्रबंध चाहिए वो सारा करके कलिया गया। They did not compromise with the world. उन्होंने संसार के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने संसार दे नाल सलाह मशरूआ नहीं किया। They did not cover their head to look the world. उन्होंने सिर से टोपी हटाकर संसार को देखने का इच्छा नहीं दिखाया। उन्होंने उस स्पेस सूट में रह के संसार को देखने की इच्छा नहीं दिखाई। They walked and moved in that heavenly spacesuit. और वो इस संसार में रहते वक्त वो इसी स्वर्गीय स्पेस सूट में चलते फिरते रहे। और वो स्पेस सूट में रहते हुए स्वर्गीय नागरिक बनकर धरती में चलते रहे। That spacesuit said, they are the people of New Jerusalem. और ये स्पेस सूट कहता था कि जिन्होंने पहना है ये स्वर्गीय यरूशलेम के नागरिक है। और ये स्पेस सूट कहता सी जिन्होंने पहना और स्वर्गीय जो यरूशलेम के नागरिक हैं। Some of you attracted by the world try to remove that covering. आप में से कई लोग संसार की आकर्षण को देखकर कई बार ये टोपियां हटा देते हैं। और ताडे विचों कई लोग जड़े आ वो संसार दी खिच नूं वेख के आकर्षण नूं वेख के टोपियां टा लेंदे हन। Put it back. अपनी टोपियों को वापस डाल दें। अपनी टोपियों नूं वापस ला दियो। Put it back. उसके स्थान में वापस अपनी टोपियों को डालें। अपनी वापस वो टोपियों को पहन ले। अब वापस उस टोपियों नूं पहन लइए। Put the chain correctly. और वो उसको सही तरीके से वो टोपी को डाल लें। और उन्हां नूं अपने सिर दे उत्ते पहन लइए। Put the zip correctly. और वो जिप को अच्छी तरह लगा दीजिए। उस जिप नूं चंगी तरह बंद करिए। What did he do? आपने क्या किया? तुसी की कीता? You opened the zip of the hand and tried to touch the world. आप वो हाथ के ऊपर का जिप खोलकर आप अपने नंगे हाथ से पृथ्वी को पकड़ने की कोशिश और करते हैं। तुसी ओ अपने हाथ दे नाल जिप खोल के अपने नंगे हत्थां नूं धरती नाल फड़न दी कोशिश करदे हो। Put it back. अपने जिप को वापस बंद करें हाथ अंदर लेकर। और अपने हत्थां नूं अंदर करके अपनी जिप नूं बंद करिए। You removed the zip of the feet and walked in the world. आपने पैर से जिप खोला और नंगे पैरे ये पृथ्वी में चलते हैं। और तुसी अपने पैरां तो जिप खोली अते नंगे पैर धरती ते चलदे हो। Your power is lost. आपको मिला हुआ सामर्थ खो गया। तानू मिली हुई समर्था गवा ली। Put it back. आज रात वो जिप वापस लगा ले। और आज रात तो जिप वापस ला लिए। Heavenly charging station is come. स्वर्ग का चार्जिंग स्टेशन आज रात आया है। और आज स्वर्ग दी जड़ी स्वर्ग दे वाला सेना आई हुई है। The heavenly charging station has come. स्वर्ग से चार्ज करने वाला स्टेशन आज रात आया है। और स्वर्ग तो चार्ज करने वाली सेना आज रात आई हुई है। If you want, you get connected and be charged. अगर चार्ज चाहिए तो आज रात कनेक्शन लगा ले और चार्ज पा ले। आज जेकर चार्ज चाहिए तो आज रात अपना कनेक्शन जोड़ दे। Everyone who is ready, the
heaven will charge them with power now. आप में से कोई भी अगर चार्ज पाना चाहता है, आज रात उस चार्जिंग स्टेशन से जुड़ जाएं, अभी चार्ज हो सकते हैं। और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਚਾਰਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। Start. शुरू कर दें। शुरू कर दइए। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. 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 To the Bible. Hallelujah. Oh, pi, call, Christ, great, 8, 12, 9, shine, right, time, roll, pi, cake, call, pi, call, pi, cake, oh, pi, faith, gold, pi, call, pi, short, right, die, God, right, in, right, call, pi, cake, call, time, call, pi, down, pi, call, pi, shot. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hold by God, hold by God, Hallelujah. 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 Oh, glory to God.